Welcome to the Access Institute. In this lecture, we will be studying about probability, what is probability, and this is a special one-shot video for all the aspirants who are going to give board examination in class 10th. We will be studying probability in this video, and basically this will be for boards and foundation course. See, from class 8, 9, 10, we are so much habitual of doing questions on probability, or in fact we can say that this chapter comes under all the classes, whether you say about class 8, class 9 or class 10. So today this lecture is completely for probability. We'll be discussing all the questions, all the type of the questions which comes under the probability. Okay, so let us start. First, what we'll be studying in this, what are the content that is in this lecture. First, we'll study about experiments. What are the experiments? What are random experiments? We will be studying about that. What will be the sample space in that experiment? And finally, we will be seeing questions based on that. Okay, so here the lecture starts for probability. See, what is probability? We know very well that in day-to-day activities we do so many of experiments. In some of the experiments we know the results, in many of the experiments we don't know the result. Okay, so based on that, experiments are of two types. The first type is deterministic experiments and second is random experiments. See, deterministic experiment क्या होता है बेटा? Whose outcome is well known to you and that is fixed, कि वही होने वाला है, ठीक है? That is fixed, that it is to be done only. For example, if we see, if I draw a triangle, यदि मैं एक triangle draw करता हूँ, so it is a well known fact that if we measure the sum of all the angles, यदि हम सारे angles का sum measure कर रहे हैं, so this comes out to be 180 degree. वो हमेशा कितना आएगा? 180 degree. Whatever be the triangle, आप कैसे भी triangle को बनाओ, आपका जो एंगल होगा, sum of all the angles, angle A, angle B and angle C, this will be 180 degree only. ठीक है, ये 179. So कुछ ऐसे experiments होते हैं whose results are fixed, whose outcomes are fixed कि यही होने वाला है. ठीक है, so such experiments are known as deterministic experiment. ठीक है, while random experiments का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ ऐसे events होते हैं जो आपको पता है ऐसा हो सकता है, this may be possible, but you are not sure about that. For example, you know probability में हम लोग कैसे questions करते हैं? We do questions based on dice, coin. ठीक है, जब आप कॉइन को फेंकते हो, यू नो अबाउट द रिजल्ट कि सर हमारे पास दो रिजल्ट्स आने वाले हैं, हेड और टेल. ठीक है, आइदर इट विल बी हेड और इट विल बी अ टेल. ठीक है, बट वी आर नॉट श्योर दैट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हेड और वी आर नॉट श्योर इट इज गोइंग टू बी it is always going to be tail unless and until it is unbiased, right? तो इसका क्या मतलब होता है? जब हमें रिजल्ट्स पता है but we have so many options for that. मेरे पास हेड भी है, टेल भी है. I cannot say, I am not very sure कि सर हेड आएगा या फिर सर टेल आएगा. ठीक है, so these experiments come under the category of random experiments when you know that what may be the options या what may be the result but we are not sure about the result. Dice, ठीक है, जब आप एक डाइस फेंकते हो, व्हेन यू थ्रो अ डाइस, हमें पता है कि या तो 1 आएगा या तो 2 और 3 और 4 और 5 और 6, बट वी आर नॉट श्योर कि इट विल ऑलवेज बी अ 3 और द नेक्स्ट वन विल बी अ 4 और इट विल बी अ 6. ठीक है, दैट कंप्लीटली वो सारे की सारी चीजें क्या होती है बेटा? दैट आर अननोन. वो अननोन होता है. आपको पता है क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, बट व्हाट इज कमिंग वो आपको नहीं पता, या व्हाट विल कम वो आपको नहीं पता. तो वो सब चीजें के वो सब चांसेस को निकालने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं प्रोबेबिलिटी. सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांस, किसी भी होने की चांसेस, कितने चांसेस है. यदि आपके पास टोटल 6 केसेस हैं तो 1 आने के कितने चांसेस है, 2 आने के कितने चांसेस हैं, दैट विल बी स्टडिंग इन प्रोबेबिलिटी. ओके, सो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम लोग ने यही देखा था कि हमें पता होना चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है. सो व्हाट डू वी मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनके आउटकम्स आपको पता है क्या हो सकता है, बट वी आर नॉट नोन अबाउट वॉट विल बी द नेक्स्ट टर्न, या अगले बाद में क्या आने वाला है वो आपको नहीं पता. आप बोल सकते हो आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 while throwing a dice, but we don't know or we are not very sure that the next one which will appear on the upper face of a dice will be 5. ओके, सो इस चीज के लिए हम लोग स्टडी करते हैं प्रोबेबिलिटी की, चांसेस की. ठीक है, आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर. ठीक है, बट मुझे ये पता है या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी. मुझे मैथ्स में 50 मिलेगा, कितने मार्क्स मिलेंगे आई एम नॉट श्योर. ठीक है, बट मुझे पता है कि 1 से लेकर के 100 तक कुछ तो कुछ मिलने वाला है इफ यू आर गेटिंग एन इंटीजर आउट ऑफ 100. ठीक है, तो दीज आर एक्सपेरिमेंट्स. ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बेटा, और इन एक्सपेरिमेंट्स को बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी में डील करते हैं कि किसी भी आने के क्या चांसेस है, व्हाट आर द परसेंटेज, दैट इज प्रोबेबिलिटी, आशंका. ओके, चलिए. सो सबसे पहले नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट द सैंपल स्पेस. इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे सैंपल स्पेस के बारे में कि व्हाट इज अ सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होता है? सी,
अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब हम एक कॉइन को फेंकते हैं, व्हेन वी थ्रो अ कॉइन, ठीक है, या व्हेन वी टॉस अ कॉइन, वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, हमारे पास या तो हेड आएगा और अ टेल, ठीक है, आइदर हेड विल अपीयर और टेल विल अपीयर। तो यहाँ पे मुझे क्या पता है बेटा कि इस सैंपल स्पेस में मेरे पास क्या आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, हेड और टेल, इन दोनों में से कोई एक आएगा, हमें ये पता है दैट आइदर ऑफ दीज टू विल कम, ठीक है। तो इन दोनों का जो सेट होता है इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो बेसिकली सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज। यदि आप किसी भी चीज को फेंक रहे हो, किसी भी इवेंट को कर रहे हो, तो जितने भी आउटकम्स होंगे उन सारे के सारे आउटकम्स का जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सो सैंपल ऑफ ऑल आउटकम्स। फॉर एग्जांपल यदि आपने एक डाइस फेंका, सो वी नो कि डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास सैंपल स्पेस इज कलेक्शन ऑफ ऑल दीज इवेंट्स, या हम ये बोल सकते हैं कि इन सारे के सारे आउटकम्स का जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड अ सेट। उन सेट को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6। यदि आपने एक डाइस को फेंका तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा, द सैंपल स्पेस विल बी अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। इसके हर एक ऑब्जेक्ट को एलिमेंट कहा जाता है, ओके। यदि आपने एक कॉइन को फेंका, सो इन दैट केस ऑफ कॉइन आपके पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ दीज इवेंट्स या दीज आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। बात समझ आ गई आपको। तो सैंपल स्पेस बेसिकली क्या होता है बेटा, सैंपल स्पेस इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का या किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको, उनके कलेक्शन को, उनके सेट को कहा जाता है सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए व्हाट इज अ सैंपल स्पेस, एंड सेकंड वी मस्ट नो कि व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ अ कॉइन हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 2। व्हाइल इन द केस ऑफ अ डाइस, यदि हमारे पास एक डाइस है तो डाइस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। सो दिस विल बी इक्वल टू 6। सिमिलरली यदि मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक सैंपल स्पेस है ऑफ ए ई आई ओ यू, ठीक है, यदि आपके पास एक सैंपल स्पेस है जिसमें ए ई आई ओ यू एलिमेंट्स हैं, सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, दैट विल बी इक्वल टू 5, बिकॉज इफ यू काउंटेड तो यहां पे कितना आएगा 1 2 3 4 5। सो देयर आर 5 एलिमेंट्स इन दिस सेट एंड हेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस and n of s, number of elements in the sample space जानना जरूरी है। Again, what is sample space? Collection of या set of all the elements or all the outcomes of an event, of an experiment, or what is n of s? Number of elements in the sample space is called n of s, ठीक है, ये होता है आपका n of s। Next, after this sample space, इस sample space के बाद What should we know? Let us find the different cases। हम लोग अलग अलग केसेस बनाएंगे, उसमें क्या क्या सैंपल स्पेस होगा या क्या क्या किस तरीके के प्रोबेबिलिटीज होगी, हमें वो देखना है, ओके। सो एक और चीज वापस हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। लेट अस डील वंस मोर इन द केस ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें किस पे डिस्कस करना है, ओके, ध्यान से सुनिएगा। सो probability of event that is P of E, this simply means probability of any event, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P of E से, and this probability of E is given by N of E upon N of S, ठीक है। तो probability of any event is given by N of E upon N of S। इसका मतलब क्या होता है बेटा, what does it mean, कि यहाँ पे क्या है, किसी भी इवेंट का यदि हमें probability निकालना है, if you wish to find probability of any event, so this will be equal to number of outcomes which are favorable to event। जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है उसको फेवर करने वाले कितने आउटकम्स हैं, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, और यू कैन सिंपली राइट एस, ठीक है। तो बेसिकली यदि आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इफ यू विश टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, सो दिस इज गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर फेवरेबल टू दैट इवेंट होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, ठीक है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उस चीज को जो क्वेश्चन में पूछा है उसको फेवर करने वाले कितने आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में कितने आउटकम है, दिस इज गिवन बाय P of E, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट P of E, इसका मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस होल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू द आउटकम और इवेंट और एक्सपेरिमेंट
होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे एक कॉइन की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कॉइन, यदि हम लोग किसी भी कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, सो व्हाट वी नो, हमें क्या पता होता है कॉइन के केस में, कि कॉइन के केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती है। वी हैव टू पॉसिबिलिटी इन द केस ऑफ अ कॉइन। यदि मेरे पास एक कॉइन है, इफ आई हैव अ कॉइन, तो इस कॉइन के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटी होगी, आइदर इट विल बी अ हेड और इट विल बी अ टेल। ठीक है, या तो ये हेड होगा या तो टेल होगा। इफ यू टॉस अ कॉइन, यदि आपने कॉइन को टॉस किया तो या तो ये हेड होगा और इट विल बी अ टेल। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे सैंपल स्पेस की बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया था सैंपल स्पेस क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। आपने कॉइन फेंका, क्या क्या आउटकम्स हो सकता है, either the head or the tail। तो यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगा बेटा, h, t। ठीक है, सैंपल स्पेस में कितने हो गए, h, t। एंड इफ आई टॉक अबाउट n of s, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, सो दिस विल बी इक्वल टू 2, हेड एंड टेल। तो दो इवेंट्स है, इसलिए n of s इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। इफ द क्वेश्चन आस्क प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि आपने कॉइन को टॉस किया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस है या कितने चांसेस हैं कि वो हेड ही आएगा। ठीक है, आपने कॉइन को फेंका तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके लिए क्या हो गया बेटा, आपके लिए कोई इवेंट क्या हो गया, आपको इवेंट क्या हो गया, दैट यू विश टू फाइंड अ एच। आपको क्या चाहिए, हेड। आपको क्या चाहिए, हेड चाहिए, राइट। तो जो भी आपके फेवरेबल आउटकम्स होते हैं फ्रॉम द सैंपल स्पेस, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। और ई आपको क्या चाहिए, एच, यू नीड अ एच, राइट। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट ई, इस सेट ई में कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा, 1। जबकि हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने, सैंपल स्पेस क्या है हमारे पास, h, t, और सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने इवेंट्स हैं, वी हैव 2 आउटकम्स, 2 आउटकम्स हैं, यस और नो, 2 एलिमेंट्स हैं। तो इफ आई अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ p ऑफ e व्हिच इज गिवन बाय n ऑफ e बाय n ऑफ s, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट कितना है, 1, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितना है, 2। सो द आंसर विल बी 1/2, सिंपल। ठीक है, आपको बस ये काउंट करना है कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको कितने एलिमेंट्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस फेवर कर रहे हैं, एंड होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। सिमिलरली यदि मुझे पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इन दैट केस मुझे टेल चाहिए, तो टेल कब आ रहा है बेटा, इस केस में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास e कितना हो गया, t, एंड व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो इफ वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज p ऑफ e, दिस विल बी, फॉर्मूला क्या होता है, n ऑफ e अपॉन n ऑफ s। n ऑफ e कितना है बेटा, 1, और n ऑफ s नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस हमारे पास कितना है, 2। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2। सो फॉर गेटिंग अ हेड इट इज 1/2, फॉर गेटिंग अ टेल इट इज 1/2, क्योंकि यदि हमारे पास एक अनबायस्ड कॉइन है जिसको आपने फेंका तो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी आपको पता है, हेड आने के चांसेस भी 50% है, बिकॉज आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग। जब आप क्रिकेट देखते होगे तो वहां पे भी कॉइन को टॉस किया जाता है, राइट। तो उस समय भी हम ये नहीं बोल सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के आने के चांसेस कितने होते हैं, 50-50%, राइट। यहाँ पे वही चीज है, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, बिकॉज प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है बेटा, दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट 1। इसको हम आगे देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में जब आप जाओगे तो वो 50% हो जाता है, बट इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी इट इज ऑलवेज फ्रॉम 0 to 1। 0 कब होगा, व्हेन यू आर वेरी श्योर कि ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। यदि आपके पास, जैसे आपके पास एक डाइस है, आपके पास एक कॉइन है, आपने कॉइन को फेंका, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड टेल, हेड और टेल दोनों आने की प्रोबेबिलिटी, इट विल बी 0। ठीक है, यदि आपके पास कुछ और कंडीशन आप लोग नहीं लगाते हो तो इट विल ऑलवेज बी 0, बट व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर हेड और अ टेल, कि हेड या टेल, और तो वी नो इन दैट केस इट विल बी 1। ओके, चलो। So this was about बेसिकली दिस वॉज अबाउट अ कॉइन, कि हम कॉइन की प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम लोग ने एक सिंगल कॉइन लिया, वी टुक अ सिंगल कॉइन, बट द केसेस चेंज। देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, यदि आपने 2 कॉइन को लिया, इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, व्हेन वी आर टेकिंग 2 कॉइन्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज याद रखना दैट यू शुड नो अबाउट द सैंपल स्पेस, यू शुड नो हाउ टू फॉर्म द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कैसे बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स, हमने 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया, ध्यान से सुनना। यदि पहले कॉइन पे, लेट अस कंसीडर व्हेन वी टॉस 2 कॉइन, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कॉइन राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कॉइन। तो मान लीजिए फर्स्ट कॉइन, आपने कॉइन को फेंका, तो उस कॉइन के समय आपको हेड भी मिल सकता है या तो फिर आपको टेल भी मिल सकता है। आपने कॉइन फेंका और आपको हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिल सकता है, क्या मिला मुझे नहीं पता। लेकिन यहां से फिर एक ऑप्शन, एक और क्वेश्चन आता है कि जब आप दूसरी बार फेंकोगे तब क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ यू थ्रो द सेम डाइस ट्वाइस। उसी डाइस को मैंने फिर से दोबारा फेंका तो क्या होगा, पहली बार में
पहली बार में, ध्यान से सुनना, लिसन इट केयरफुली, पहली बार में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। यदि मान लो पहली बार में हेड आया, पहली बार में हेड आ गया, तो अगेन इन द सेकंड केस आई डोंट नो, इट मे बी अ हेड, इट मे बी अ टेल। सेकंड बार में फिर से हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, वी डोंट नो, राइट। यदि पहली बार में हेड आया तो दूसरी बार में क्या आएगा बेटा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेकिन इन द सेम वे इफ यू गॉट फर्स्ट टेल, यदि पहला ही टेल मिल गया तो यहां पे हमारे पास फिर से दो ऑप्शन होंगे कि सर सेकंड टाइम में भी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। मतलब व्हाट विल बी द केसेस, आप ये बोल सकते हो ना, आपने कॉइन को फेंका, सर दो कॉइन को यदि हम लोग साथ में लिखें तो सर पहली बार हेड आ सकता है, दूसरी बार टेल आ सकता है, या तो फिर पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी टेल, या तो फिर पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, या तो फिर पहली बार भी टेल और दूसरी बार भी टेल। मतलब दिस में बी द सैंपल स्पेस, दिस में बी द सैंपल स्पेस कि किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें मिल रही है, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, इस तरीके से हमने फॉर्म किया। बात समझ आ गई है। तो यदि पहली बार में हेड आया तो दूसरा भी क्या हो गया बेटा, हेड, तो यहां से हमें क्या मिला, एच एच। यदि पहली बार में हमें हेड मिल गया तो दूसरी बार में हमें क्या मिल रहा है, टेल, दैट इज एच टी। यदि पहली बार में टेल मिला, दूसरी बार में हेड, एंड यदि पहली बार में टेल मिला, दूसरी बार में भी टेल, सो दीज आर द सैंपल स्पेस। ये हो गया हमारे पास सैंपल स्पेस, बिकॉज दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। अब आप चेक कर लो, इसके अलावा आपको कोई भी आउटकम और नहीं मिलेगा। These are all the possible outcomes। तो यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, 4, दैट इज एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। सो इफ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, कि इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, सो वी नो 1 2 3 4, वी हैव 4 एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस एंड हेंस n of s is equals to 4। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में सैंपल स्पेस, उसके एलिमेंट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए, देन ओनली वी कैन प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, चलिए लेट्स सी। अच्छा, नेक्स्ट लेट अस रीड द क्वेश्चन। व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, दो कॉइन को एक साथ फेंका गया, ठीक है। फाइंड द सैंपल स्पेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स, टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। आपने पहले कॉइन को फेंका, पहला कॉइन हेड भी दे सकता है, टेल भी दे सकता है। सो अगेन फॉर फॉर्मिंग द सैंपल स्पेस, यदि मैंने एक कॉइन को फेंका, लेट अस से दिस इज अवर कॉइन, और यदि मैंने कॉइन को फेंका तो मुझे एक हेड भी मिल सकता है और एक टेल भी मिल सकता है। आई डोंट नो, आई कैन गेट अ हेड, आई कैन गेट अ टेल, राइट। यदि पहली कॉइन पे हेड आया, आपने इस तरफ से एक कॉइन फेंका, यू गॉट अ हेड, आपने इस तरीके से भी फेंका, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। मतलब यदि मुझे पहले कॉइन पे हेड मिल रहा है तो दूसरे कॉइन में हेड भी आ सकता है, या फिर दूसरे कॉइन में टेल भी आ सकता है। सो हेड 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 टेल, व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी, कि यदि पहले कॉइन में हेड आया तो दूसरी कॉइन में सर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सिमिलरली इन द सेकेंड केस, यदि पहले बार में टेल आया तो दूसरी बार में अगेन आई कैन गेट अ हेड और आई कैन गेट अ टेल। सो व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम्स, यदि पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में हेड एंड टेल, तो क्या हो सकता है बेटा, टेल एंड हेड और टेल एंड टेल। तो यहां से मेरे पास क्या हो सकता है, दिस इज टेल आ गया, तो दूसरी बार में दूसरे डाइस पे, दूसरे कॉइन पे हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है, राइट। सो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, अगेन वी हैव दैट इज एच एच। यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बच्चे, दैट इज एच एच या फिर एच टी, एच एच या फिर एच टी, और व्हाट कैन वी हैव, टी एच, या तो फिर मुझे क्या मिल सकता है, टी टी। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो टू डाइसेस टुगेदर, टू coins together. So this is the sample space, right? अब यदि ये मेरे पास sample space हो गया तो n of s मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, number of elements in the sample space is 4। इतना आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। You have to find sample space, you have to find number of elements in the sample space as well. Okay? Now let us move to the question. First question क्या बोल रहा है, both head। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, कि दोनों के दोनों आपको हेड चाहिए। ओके, तो लेट अस डू द फर्स्ट क्वेश्चन। दोनों के दोनों हेड चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास इवेंट कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द इवेंट, आई वांट टू गेट बोथ हेड। तो मुझे चूज करके सिलेक्ट करके बताइए कि इस सैंपल स्पेस में ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं जिसमें दोनों के दोनों हेड है। तो ओनली वन, दैट इज एच एच। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितना हो गया बेटा, ओनली वन। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यस और नो, वी हैव ओनली वन एलिमेंट हु इज गेटिंग बोथ एज हेड, राइट। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विच इज इक्वल्स टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना हो गया 1 और एन ऑफ एस कितना हो गया 4। सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/4, ठीक है, क्योंकि बोला था दोनों हेड, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है, एक ही ऐसा एलिमेंट है जहां पे दोनों के दोनों हेड हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/4। ओके,
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, बोथ टेल, दोनों के दोनों कैसे हो जाए बेटा, टेल हो जाए। तो अगेन आप इसका आंसर बेहतर कर सकते हो, राइट। एलिमेंट, यदि मुझे इवेंट, इवेंट क्या है बेटा, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, दैट बोथ शुड बी ई, दोनों के दोनों टी होने चाहिए, टेल होने चाहिए। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिसमें दोनों के दोनों टेल है, ओनली वन, दैट इज टी टी यहां पे। तो अगेन एन ऑफ ई हमें कितना मिल गया, एन ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1 एंड हेंस वी कैन से कि सर प्रोबेबिलिटी व्हिच इज गिवन बाय एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, दिस शैल बी 1/4। ओके, अगेन एन ऑफ ई इज 1 एंड एन ऑफ एस इज 4। आपको एन ऑफ एस बाय कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हर एक क्वेश्चन में, एक बार आप यदि आपने स्टार्टिंग में लिख दिया देन इट इज कंसिडर्ड फॉर ऑल द केसेस। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड केस। थर्ड क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है वन हेड एंड वन टेल, एक हेड होना चाहिए और एक टेल होना चाहिए, देयर शुड बी अ हेड एंड अ टेल, एक हेड और एक टेल, फाइन। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिसमें हेड भी है टेल भी है, एक हेड है और एक टेल है। तो पहले तो ये एच टी हेड एंड टेल, या तो फिर टी एच, इसमें भी एक हेड है और एक टेल है। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इवेंट आई एम गेटिंग टू एलिमेंट्स एज एच टी एंड टी एच एंड हेंस वी हैव एन ऑफ ई एज 2। यहाँ पे हमारे पास एन ऑफ ई कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। सो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज गिवन बाय एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस एंड दिस कैन बी गिवन बाय 2/4 विच कम्स आउट टू बी 1/2, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक्चुअली बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटलीस्ट या एटमोस्ट में क्या होता है, इनफैक्ट उल्टा कर देते हैं, ठीक है, एटलीस्ट में एटमोस्ट वाला कंडीशन लगा देते हैं, एटमोस्ट में एटलीस्ट वाला कंडीशन लगाते हैं। बट जब कभी भी आप एटलीस्ट में कंफ्यूज हो कि एटलीस्ट क्या होता है, एटमोस्ट क्या होता है, थोड़ा सा सोचना। आपको एग्जामिनेशन में, इन योर एग्जामिनेशन आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स होने होते हैं, कितने मार्क्स लाने होते हैं, एटलीस्ट 33, एटलीस्ट 33। एग्जाम में पास होने के लिए हमें कितने चाहिए, एटलीस्ट 33। एटलीस्ट 33 का मतलब आप पास होने के लिए कितना लाओगे, आइदर 33, 34, 35, 36 और अप टू 100, यू कैन ब्रिंग एनीथिंग, यू कैन स्कोर एनीथिंग फ्रॉम 32, 33 टू 100 इंक्लूडिंग 33, राइट। तो जब कभी भी आपको बोला जाता है एटलीस्ट 2, यदि आपको बोला जाए कम से कम 2 चॉकलेट तो आपको खानी है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। तो यदि कोई आपको बोलता है कम से कम 2 चॉकलेट तो आपको खानी है, तो आप 2 भी खा सकते हो, 3 भी खा सकते हो, 4 भी खा सकते हो, 5 भी खा सकते हो, राइट। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, उस नंबर को इंक्लूड करके उस नंबर से ज्यादा भी, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट नंबर एंड ग्रेटर देन दैट। तो यदि बोला है एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, या आपके पास 1 हेड हो या तो आपके पास 2 हेड हो, ठीक है। एटलीस्ट वन मतलब या तो एक हेड होगा या तो एक से ज्यादा हेड होगा, ठीक है, आइदर 1 हेड और मोर देन 1 हेड, ठीक है। सो हेड यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक हेड, तो ये हो गया हमारा एक हेड। इसमें कितने हेड, एक, ऑफ कोर्स इंक्लूड करना है। इसमें कितने हेड, 2। हमें किसको काउंट करना है बेटा, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसमें कितना है, एक, इसमें कितना है, एक, इसमें कितना है, 2, विच इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास इवेंट कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द इवेंट, दैट विल बी क्या क्या हो जाएगा, एक तो आपका HH, एक आपका HT और एक आपका क्या हो गया बच्चे, TH। तो वी कैन से कि सर यहाँ पे जो N of E है दैट इज इक्वल टू 3। N of E कितना है बेटा, यहाँ पे 3 है। एंड हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फेवरेबल टू द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विच इज 3/4। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। सो दिस इज अ डबल कॉइन क्वेश्चन, जहाँ पे आपने 2 कॉइन्स को एक साथ फेंका या एक कॉइन को 2 बार फेंकोगे तो भी आपके सैंपल स्पेस सेम होगा, ठीक है। चल, सो ये हो गया डबल कॉइन के बारे में हम लोग ने देखा। नाउ डबल कॉइन के बारे में बाद हमारे पास और भी क्या आ सकता है बेटा, वी मे हैव द क्वेश्चन फॉर ट्रिपल ऑल्सो, ठीक है। हमारे पास वो केस भी हो सकते हैं जहां पे हम 3 कॉइन्स को एक साथ फेंक रहे हैं या फिर 3 कॉइन को 1 by 1 फेंक रहे हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक कॉइन था, दिस इज अ कॉइन, कंसीडर दिस इज अ कॉइन। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, हेड एंड टेल। मैंने पहली बार फेंका, थ्रो इट फर्स्ट, तो यहाँ पे मुझे हेड भी मिल सकता है या तो फिर टेल भी मिल सकता है। आई कैन गेट अ हेड और अ टेल। यदि पहली बार में हेड आ गया, इन द फर्स्ट केस आई गॉट अ हेड, तो दूसरी बार में वापस से सर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इन द सेम वे यदि पहली बार में टेल आ गया तो दूसरी बार में वापस से हेड भी आ सकता है या तो फिर टेल भी आ सकता है। आई कैन गेट अ हेड और आई कैन गेट अ टेल। ये हो गया दूसरा केस, ठीक है। अब पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आ गया, फिर आपने उसको तीसरी बार भी उछाला तो तीसरी बार फिर से, ऐसा तो कुछ है नहीं कि पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार हेड आ गया तो तीसरी बार भी हेड आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी कि सर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में टेल आया, तो अगेन वी मे हैव 2 केसेस कि सर हेड भी आ सकता है या तो टेल भी आ सकता है।
यदि पहली बार में टेल, दूसरी बार में हेड, सो अगेन इन द थर्ड केस आई कैन गेट अ हेड और आई कैन गेट अ टेल। फोर्थ केस में यदि पहला भी टेल दूसरा भी टेल, देन अगेन आई विल हैव द सेम टू केसेस कि सर हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। सो इफ वी सी द सैंपल स्पेस, यदि हम लोग यहाँ पे सैंपल स्पेस देखें कि सैंपल स्पेस में किस तरीके के एलिमेंट्स हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया बेटा, एच एच एच। फ्रॉम हियर व्हाट आई एम गेटिंग एच एच एच। ओके, यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा, एच एच टी। देन व्हाट आई एम गेटिंग, दिस विल बी टी टी एच। व्हाट आफ्टर दैट, दिस विल बी, sorry, this is HTH, HTH, and then I am getting HTT. From here I am getting THH, then this is THT, then this is TTH, and finally I am getting TTT. So we can count that how many elements are there in the sample space, कि इस sample space में कितने elements हैं, and we can count it 1 2 3 4 5 6 7 8. So how many elements we are having, 8 elements. तो यहाँ से हमारे पास number of elements in the sample space कितना हो जाएगा, 8. So these are the number of elements in the sample space, कि यदि आप 3 कॉइन को फेंक रहे हो तो number of elements in the sample space कितना होगा, 8. एक कॉइन को फेंका, आपके पास कितने sample space आए, एलिमेंट्स आए थे sample space में, 2, हेड और टेल। जब आपने 2 कॉइन्स को फेंका तो कितने बार आए, 4। ठीक है, कितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आए, 4। सिमिलरली इफ वी थ्रो 3 कॉइन्स टुगेदर और इफ वी थ्रो 3 कॉइन्स वन बाय वन, ठीक है, इन दैट केस क्या आएगा बेटा, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू 8, लाइक दिस। ठीक है, चल नाउ बेस्ड ऑन दिस 3 coins, let us perform some questions। यदि हमारे पास यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है कि किस तरीके से करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अगेन वी हैव 7 क्वेश्चंस ओवर हियर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सारे सैंपल स्पेस को, आपको पता है, एक बार फिर से लिख लेते हैं, व्हाट आर द सैंपल स्पेस। सो सबसे पहले मुझे मिला था एच एच एच, द फर्स्ट एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस वाज एच एच एच, एंड देन आई एम गेटिंग एच एच टी। ओके, वन मोर थिंग, जरूरी नहीं है कि सैंपल स्पेस में आप एलिमेंट्स को इसी ऑर्डर में लिखें जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ। Order is not necessary, you can write anything anywhere, but of course आप किसी चीज को रिपीट नहीं कर सकते, you can not repeat any element, okay? Then यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, H T H, then I will be getting H T T. After that this will be T H H, then T H T, then T T H, and T T T. So these are the elements in the sample space, and hence the number of elements in the sample space is equal to 8. Now let us focus on the question. Question number 1. Question number 1 क्या बोल रहा है, all heads, सारे के सारे हेड होने चाहिए, सारे के सारे हेड होने चाहिए, मीन्स द इवेंट इज आस्किंग फॉर ऑल हेड। इवेंट क्या बोल रहा है कि सारे के सारे हेड होना चाहिए। तो मुझे बताइए, एक ही केस है जहां पे सारे के सारे हेड है, देयर इज ओनली वन केस वेयर ऑल आर हेड, जहां पे सारे के सारे कैसे हैं बेटा, हेड हैं। तो यहां से n ऑफ e हमारे पास कितना आ गया, n ऑफ e इज इक्वल्स टू 1। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, तो p ऑफ e व्हिच इज गिवन बाय n ऑफ e अपॉन n ऑफ s कैन बी रिटन एज 1/8। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/8, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the event which are favorable to event is 1 and number of elements in the sample space is equal to 8. Okay, fine. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1 टेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक ही टेल चाहिए भाई साहब को। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक ही टेल चाहिए। नाउ वी नीड टू सर्च all the elements in the sample space which have only 1 tail। साफ साफ बोला 1 टेल, इसको एक ही टेल चाहिए। ठीक है, फाइन। सो दिस इज द एलिमेंट इन विच वी आर गेटिंग 1 टेल, 1 2, दिस इज 2, दिस इज 1 2 2 3, राइट। हमें कितना टेल चाहिए, एक। तो एक तो ये हो गया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कितने इवेंट्स हो गए बेटा, दिस इज एच एच टी, देन एच टी एच एंड टी एच एच, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर फेवरेबल टू द इवेंट इज इक्वल टू 3। सो यहां से हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू n ऑफ e अपॉन n ऑफ s, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 3/8, क्योंकि n ऑफ e 3 है और n ऑफ s कितना है यहाँ पे, 8 है हमारे पास। ओके, नाउ लेट अस मूव। इसका भी कोई काम नहीं है क्योंकि हम लोगों ने सैंपल स्पेस बना लिया। ये ट्री आप तभी बनाओगे व्हेन यू रिक्वायर इट। ठीक है, आप एंड आई सजेस्ट कि आप ये ट्री बनाओ ताकि कोई भी केस को आप रिपीट ना करो या किसी भी केस को आप स्किप ना करो। ठीक है, तो जब कभी भी आपको इस तरीके के 2 बार इवेंट किए जा रहे हैं या 2 इवेंट एक साथ किए जा रहे हैं, ऑलवेज गो फॉर दिस ट्री। ये ट्री बनाइए आप। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 हेड। अभी मैंने बताया था एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, और कम से कम का मतलब होता है क्या होता है, या तो वो या तो उससे ज्यादा। कम से कम का मतलब क्या होता है, या तो वो या तो उससे ज्यादा। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होगा कि 1 हेड चलेगा, 2 हेड चलेगा, 3 हेड चलेगा।
आपके पास 1 2 3 कितने भी हेड हो, बस 0 हेड नहीं होने चाहिए। 1 हेड चलेगा, 2 हेड चलेगा, 3 हेड चलेगा, कम से कम एक, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 3, ऑफ कोर्स चलेगा। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 2 दौड़ेगा, यहाँ पे कितने हैं 2 दौड़ेगा, यहाँ पे कितने हैं 1 दौड़ेगा, यहाँ पे कितने 2 चलेगा, यहाँ पे 1 ऑफ कोर्स चलेगा, यहाँ पे कितने 1 ऑफ कोर्स चलेगा, यहाँ पे कितने 0 बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें कम से कम एक चाहिए, या तो एक या तो एक से ज्यादा, या तो एक या तो एक से ज्यादा। तो देखिए जितने भी केसेस हैं या तो उसमें एक है लाइक TTH, THT और HTT, या तो एक से ज्यादा है लाइक इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फेवरिंग, how many elements are favoring to the event, how many elements are favoring to the event, that is 7. So here the probability will be equal to n of E by n of S, and hence I will be getting 7 by 8. यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे 7 by 8 आ जाएगा। Similarly if we see question number 4, no head, at most 2 tails। अब ध्यान से सुनिएगा, at most, एटलीस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, या तो वो या तो उससे ज्यादा। तो एटमोस्ट का मतलब क्या होगा, या तो वो या तो उससे कम, ठीक है। घर में मिठाई आई है और मम्मी ने बोली नो 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 कोई ज्यादा मिठाई नहीं खाएगा, मेहमान आने वाले हैं, मेहमानों को मिठाई देना है। फिर भी आप बहुत जिद कर रहे हो, रोने लगे हो, ऐसे पैर पटकने लगे हो, नहीं नहीं मुझे खाना है, मिठाई खाना है। तो मम्मी ने बोली ठीक है जाओ, ज्यादा से ज्यादा 2 मिठाई खाना है, एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2। तो व्हाट कैन यू थिंक अबाउट दिस, या तो आप खाओगे नहीं, वो भी इंक्लूड होगा, ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 2 खाना है, तो आप या तो खाओगे ही नहीं मतलब 0, एक भी नहीं खाया, या तो आपने 1 मिठाई खा लिया, या तो आपने 2 मिठाई खा लिया। मतलब क्या, एटमोस्ट का मतलब उस नंबर तक आपको मैक्सिमम है, इंक्लूडिंग दैट, वो आप कर सकते हो, दैट इज मैक्सिमम इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो, राइट। तो यदि एटमोस्ट 2 का मतलब पूछा जाए तो उसका मतलब क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। एटमोस्ट 5 का मतलब क्या होगा कि आप मिठाई बिल्कुल भी ना खाओ, 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5, बात समझ आ रही है। तो एटमोस्ट का मतलब होता है फ्रॉम 0 टू दैट नंबर, ठीक है। तो एटमोस्ट 2 टेल, यदि बोल रहा है एटमोस्ट 2 टेल, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो 0 टेल, या तो 1 टेल, या तो 2 टेल, 3 टेल नहीं होना चाहिए। 0 चलेगा, 1 टेल है तो भी चलेगा, 2 टेल है तो भी चलेगा, 3 बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहां पे कितने टेल है, 0 चलेगा। यहां पे कितने टेल है, 1, ये भी चलेगा। यहां पे कितने टेल है, 1 चलेगा। यहां पे कितने टेल, 2 ऑफ कोर्स चलेगा। यहां पे कितने टेल, 1 चलेगा। यहां पे कितने टेल, 2 चलेगा। देन कितने टेल, 2 ऑफ कोर्स चलेगा। 3 टेल नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 ना, तो 0 से लेकर के 2 तक ही काउंट होगा। तो यहां पे भी हमारे पास भाई साहब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, दैट इज n of E by n of S will be given by 7 by 8, because number of the elements which are favoring the event is 7 and total number of elements in the sample space is 8। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 by 8 आ जाएगा। Is it clear to one and all? चलिए आगे और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हमारे पास ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिसमें कोई भी हेड नहीं है, ओनली 1। बाकी सब में देखो 3 हेड, 2 2 1 2 1 1, ठीक है। तो बाकी सब में हेड है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कोई भी हेड नहीं होना चाहिए, देयर मस्ट बी नो हेड, कोई भी हेड नहीं। सो वी हैव ओनली 1 एलिमेंट जहां पे कोई भी हेड नहीं है, एंड हियर n of E which is n of E will be equal to 1. So probability of E, that is given by n of E by n of S, will be given by 1 divided by 8, because number of elements in the event is 1 and number of elements in the sample space is 8. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। number of heads is greater than number of tails, मतलब जितने भी हेड हैं उनका नंबर टेल से बड़ा होना चाहिए। number of head should be greater than number of tail, and this is a good question। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि कितने उसमें हेड हैं वो टेल से बड़ा होना चाहिए। number of head should be greater than number of tails। ओके फाइन, चलिए इसमें देखते हैं कि कितने हेड है कितने टेल है। लेट अस काउंट। सबसे पहला इवेंट लिखते हैं। इवेंट क्या है, इसमें कितने हेड है, 3, कितने टेल है, 0। तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ हेड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल। कितने हेड है, 2, कितने टेल है, 1। तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ हेड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल। यहाँ पे भी नंबर ऑफ हेड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल, राइट। यहाँ पे हेड 1 है, टेल 2 है, तो नंबर ऑफ हेड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ टेल, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हेड कितने, 2, टेल कितने, 1, ऑफ कोर्स काउंट करोगे। यहाँ पे हेड 1, टेल 2, तो नंबर ऑफ हेड इज नॉट ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल, नहीं काउंट करेंगे। नंबर ऑफ हेड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ टेल, काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे टेल कितने, 3, और यहाँ पे हेड कितना है, 0, तो
तो सिंस क्वेश्चन में बोला था हेड ज्यादा होना चाहिए टेल से, यहाँ तो हेड है ही नहीं भाई साहब, तो हम लोग सिर्फ ये 4 केसेस देखेंगे। एंड हेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट विल बी इक्वल टू 4 एंड हेंस द प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू नंबर n of e by n of s that is 4/8 and which can be written as 1/2, जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं बेटा 1/2 लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। लास्ट हेड एंड टेल इन अल्टरनेट ऑर्डर, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, हेड और टेल जो होना चाहिए अल्टरनेट होना चाहिए, मतलब हेड टेल हेड या फिर हेड टेल हेड हेड ऐसा हो सकता है, टेल हेड टेल ऐसा हो सकता है, हेड के बाद टेल आना चाहिए, टेल के बाद हेड, हेड के बाद टेल, ऐसा वाला केस कितना है। तो ये तो हेडेड हेड है, अल्टरनेट है ही नहीं। हेड हेड टेल है, ये भी अल्टरनेट नहीं है। एच टी एच दिस इज अल्टरनेट, हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया, अल्टरनेट है। एच टी टी ये भी नहीं है, टी एच एच ये भी नहीं है, टी एच टी टेल हेड टेल अल्टरनेट है, तो ये हमारा दूसरा हो गया, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। तो हमारे पास कितना हो गया बेटा, ओनली देयर आर 2 इवेंट्स व्हिच आर फेवरिंग आवर इवेंट, सो हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी गिवन बाय 2/8 एंड व्हिच इज इक्वल्स टू 1/4। आई होप इट इज क्लियर टू वन एंड ऑल, ठीक है। तो बस आपको यही चीज याद रखना है बेटा, सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना है। आफ्टर दैट सैंपल स्पेस यू शुड नो दैट व्हाट इज इवेंट आस्किंग, इवेंट क्या पूछ रहा है, एंड यू हैव टू सर्च फॉर ऑल द फेवरेबल इवेंट्स, ऑल द फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है। Is it clear? And you have the simple formula that P of E, probability of any event P of E is given by N of E by N of S, ठीक है। Now here's a question to you. मैं आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन में ये नहीं दे रहा हूँ कि ये करिए इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल क्वेश्चन दैट यू हैव टू फाइंड द सैंपल स्पेस इफ 4 पॉइंट्स आर टॉस्ड टुगेदर, ठीक है। हम लोग ने 3 पॉइंट्स का देखा है, 2 पॉइंट का देखा है, बस आपको 3 में एक और लेयर कंप्लीट करनी है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू फाइंड द सैंपल स्पेस, कि वो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स कैसे होंगे, and how many elements will be there in the sample space, ठीक है। so this is a homework for you कि आपको sample space बनाना है, ट्री बनाना है बेसिकली, उसके सारे एलिमेंट्स लिखना है और काउंट करना है कितने नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए नाउ अब हमें पता है कि एक तो पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन डाइसेस, राइट। एक डाइस होता है, 2 डाइस होता है, तो इन दैट केस हम लोग को कैसे डील करना है हमें पता है। अभी तो लूडो आप लोगों ने बहुत खेला होगा, कोरोना में तो बहुत खेला गया था ये गेम, ठीक है। घर पे बैठे बैठे सब लूडो खेलते थे, ऑनलाइन ऑफलाइन, इन एनी ऑफ द वे वी यूज्ड टू प्ले इट, राइट। तो अब इस लूडो में हमें पता है डाइस होता है और डाइस के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, दिस आर द पॉसिबल आउटकम्स, राइट। आप जैसे कोई भी डाइस फेंकोगे यू आर वेल नोन कि सर या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, इसके अलावा और कुछ होगा नहीं, इसके बिना और कुछ होगा नहीं, ठीक है। सो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो अ डाइस, राइट। अब देखो आपको पता है कि हम लोग जो डाइस यूज करते हैं दैट इज अनबायस्ड और स्टैंडर्ड डाइस। क्यों अनबायस्ड होता है बेटा वो, क्योंकि जितने चांसेस है 1 आए उतने ही चांसेस है कि वहां पे 2 आए, उतना ही चांस है वहां पे 3 आए, एंड फॉर ऑल, ठीक है। जित सारे के आने के चांसेस इक्वल होते हैं, सेम होता है, राइट, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो। यदि आपने उसमें कुछ किया है, कुछ लोडिंग की गई है या फिर कहीं पे कुछ मैग्नेट लगाया गया या कुछ भी किया गया है, सो इन दैट केस वो बायस्ड हो जाता है। बट हम लोग जितने भी डाइस के बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट अनबायस्ड डाइस, हम लोग अनबायस्ड डाइस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो अब देखिए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सैंपल स्पेस, यदि हम इस डाइस के सैंपल स्पेस की बात करें तो हमें पता है कि सर यदि हमारे पास कोई भी डाइस है तो उसमें या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 और या तो 6, दीज आर द पॉसिबल वेज कि सर या तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 6, कि इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स डू वी हैव, हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी हैव, वी हैव 6 एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। बात खत्म, सैंपल स्पेस पता चल गया, उसके एलिमेंट्स पता चल गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है नंबर 4, आपको क्या चाहिए, व्हाट द इवेंट इज डिमांडिंग दैट यू नीड अ 4, ओके। तो कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा उस इवेंट में, ओनली 4। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विच इज गिवन बाय एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 1, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/6। एट द सेम टाइम यदि बोला एक इवन नंबर, इफ वी आर आस्क्ड अबाउट अ इवन नंबर, यदि हमसे एक इवन नंबर के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर क्या है बेटा, व्हाट इज द इवन नंबर दैट वी हैव। यहाँ पे इवेंट क्या हो जाएगा, इवेंट बोल रहा है कि सर हमको एक इवन नंबर चाहिए, सैंपल स्पेस में से इवन नंबर ढूंढिए। सो व्हाट वी हैव 2 4 और 6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, इस सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है बेटा, 3 एलिमेंट्स हैं, एंड हेंस द प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 3/6 व्हिच कम्स आउट टू बी 1/2। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 1/2। सिमिलरली एक ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे इवेंट क्या डिमांड कर रहा है दैट यू नीड अ ऑड नंबर विच इज 1 3 और 5। तो यहाँ से एन ऑफ ई हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 3 और 5 का कितना हो जाएगा 3/6,
यहाँ से हमारे पास n ऑफ e कितना हो जाएगा बेटा, n ऑफ e हमारे पास यहाँ से अगेन कितना हो जाएगा 3 एंड हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ e विल बी इक्वल टू 3/6 दैट गिव्स मी 1/2। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, लेट अस डू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोला है प्राइम नंबर सी। हमें पता है प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स विच हैज ओनली 2 डिवाइजर, जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर होते हैं। ठीक है, पहला होता है द नंबर इटसेल्फ एंड सेकंड द नंबर 1। हम 1 को प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड इट इज द डाउट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स कि 1 ना ही तो प्राइम कहलाता है ना ही तो कंपोजिट कहलाता है। व्हाई? सी, बिकॉज अ प्राइम नंबर, यदि हम किसी भी प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं सो इट हैज 2 फैक्टर्स, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला वो नंबर खुद और दूसरा द नंबर 1। ठीक है, 2 कितने फैक्टर्स हैं? 2, 2 and 1। 5 कितने फैक्टर्स हैं? 2, 5 and 1। 11 कितने फैक्टर्स हैं? 2, 11 and 1। इन द केस ऑफ 1 हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, 1 को सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, 1 हैज ओनली डिवाइजर 1 डिवाइजर एंड दैट इज द 1 इटसेल्फ। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता बिकॉज प्राइम नंबर को 2 डिवाइजर्स चाहिए, राइट। इफ यू टॉक अबाउट अ कंपोजिट नंबर, लेट्स से 4, तो 4 के कितने डिवाइजर्स हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 डिवाइजर्स। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 कितने डिवाइजर्स होते हैं? 1, 2, 4। 6 कितने डिवाइजर्स हैं? 1, 2, 3 एंड 6। सो देयर आर सो मेनी डिवाइजर्स। ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। 1 इसका सिर्फ एक ही डिवाइजर है, 1। प्राइम नंबर जिसके 2 डिवाइजर, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर। 1 ना ही तो प्राइम नंबर के डेफिनेशन को फॉलो करता है ना ही तो कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन को फॉलो करता है। हेंस 1 कंपोजिट नंबर में भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे और प्राइम नंबर में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इवेंट क्या हो जाएगा बेटा? व्हाट द इवेंट इज आस्किंग? इवेंट इज आस्किंग फॉर द प्राइम नंबर। इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन है? 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 हो सकता है, 3 है, हो सकता है क्या है? 2 है, 3 है एंड 5 है। So how many elements do we have in the event? That is 3, and that gives the probability of E as n of E by n of S, and that gives me 3/6, which comes out to be 1/2. ओके, नाउ अ कंपोजिट नंबर। तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था बेटा कि जो 1 है वो कंपोजिट नंबर में भी नहीं आएगा, प्राइम नंबर में भी नहीं आएगा। तो 1 तो आएगा ही नहीं। 2 इज अ प्राइम, 3 इज अ प्राइम, 4 इज अ कंपोजिट नंबर, 6 इज अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से n ऑफ e हमारे पास कितना आ गया? 2, एंड हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल टू 2/6, विच कम्स आउट टू बी 1/3। सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर ग्रेटर देन 4, ऐसा नंबर जो कि 4 से बड़ा हो, तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर व्हिच आर ग्रेटर देन 4? दैट 2 नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास ऐसे कितने नंबर्स है बेटा सैंपल स्पेस में जो कि 4 से बड़ा है? तो वी हैव 2 नंबर्स, दोज नंबर्स आर 5 and 6, एंड हेंस वी अगेन गेट n ऑफ e एज 2, एंड दैट मीन्स कि यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ e कितना हो जाएगा बेटा? 2/6, विच इज अगेन 1/3 ऑन सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट, नंबर लेस देन 4। ध्यान से सुनना, 4 से बड़ा पूछा गया है। यदि आपसे पूछा जाता है इक्वल टू और ग्रेटर देन 4, वी मस्ट इंक्लूड 4, वहां पे हम लोग को इंक्लूड करेंगे। लेकिन यदि बोला जा रहा है लेस देन 4 तो हम वहां पे 4 इंक्लूड नहीं करेंगे। ग्रेटर देन 4 इंक्लूड नहीं होगा। लेस देन और इक्वल टू 4, इन दैट केस यू विल इंक्लूड 4। उस कंडीशन में आप 4 इंक्लूड करोगे जब आपको इक्वल भी बोला है। यहाँ पे इक्वल नहीं बोला है, यहाँ पे क्या बोला है? नंबर लेस देन 4 से लेस नंबर्स। सो हमें पता है कि यदि डाइस में 4 से लेस नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 2 and 3। सो हेंस we have n of e as 3, and probability we will be getting as 3/6, which gives us 1/2। तो यहाँ से हमें पता चल गया what is the probability of getting a number less than 4, that is 3/6, which is equal to 1/2। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इस पे बेस्ड अभी हम लोग और क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए अगला क्या बोल रहा है बेटा? अगला यहाँ पे हमसे क्या पूछता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है नंबर ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 2, 4 से बड़ा 2 से छोटा। कैन यू फाइंड अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 4? यस, 5, एंड लेस देन 2, 1। बट हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? अ नंबर दैट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस। एक ऐसा नंबर जो 4 से बड़ा भी होना चाहिए और 2 से छोटा भी होना चाहिए। आई डोंट हैव एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 4 और लेस देन 2। क्या आपके पास ऐसा नंबर है जो 4 से बड़ा हो, 4 से बड़ा हो बट लेस देन 2? इफ यू से 5 इज ग्रेटर देन 4 बट नॉट लेस देन 2। इफ यू से 1 इज लेस देन 2 बट नॉट ग्रेटर देन 4। सो वी डोंट हैव एनी नंबर, हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि दोनों के दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास e कितना हो जाएगा बेटा? ध्यान से सुनना,
सुनना, हियर ई वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन द ई, हमारे पास ई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, एंड हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 0 एंड पी ऑफ ई दैट इज प्रोबेबिलिटी विल बी 0/6 व्हिच कम्स आउट टू बी 0 अगेन। इनफैक्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि इफ वी हैव एनी इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0, एंड इफ वी हैव एनी इवेंट जो पक्का पता है ये तो होना ही होना है, श्योर होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। सो क्यों, मुझे पता है कि किसी भी डाइस में कभी भी ऐसा नंबर नहीं आ सकता, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 0। यदि आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 0 इन अ डाइस, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाइस के लिए 1 2 3 4 5 6 कंडीशन होता है, यही आ सकता है, 0 कभी नहीं आ सकता, 7 कभी नहीं आ सकता, 1.5 कभी नहीं आ सकता, 2/3 नहीं आ सकता, √3 नहीं आ सकता, -1 -0.5, ये सारे के सारे नंबर्स नहीं आ सकते हैं, बिकॉज दे आर कन्फाइंड टू ओनली 6 नंबर्स 1 2 3 4 5 6। एक डाइस में हमें सिर्फ यही 6 नंबर्स मिल सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो उन सारे नंबर्स के आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। ओके, चलिए नेक्स्ट, एटलीस्ट 3। अभी हमने डिस्कस किया था, एटलीस्ट 3 मतलब या तो 3 या तो उससे ज्यादा, एटलीस्ट 3 मतलब 3 को इंक्लूड करोगे या तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो यहां पे हमारे पास ई कितना हो जाएगा बच्चे 3 4 5 6, number of elements in E that is equals to 4, and hence the probability of E will be equal to 4/6, which can further be simplified into 2/3. okay, at most 2, at most 2 में मैंने क्या बोला था, 0 से उस नंबर तक, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, इंक्लूडिंग 0, राइट, इंक्लूडिंग 0 एंड दैट नंबर, राइट। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, मैंने अभी आपको बताया सैंपल स्पेस में से देख के बताना है, 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 0 इज नॉट इन द सैंपल स्पेस, तो यहां पे हमारे पास इवेंट में क्या आएगा, आइदर 1 और 2, यही दोनों पॉसिबल है एटमोस्ट 2 के लिए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 2, एंड हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू 2/6, दैट गिव्स मी 1/3, जो कि मुझे कितना वैल्यू दे रहा है, 1/3 वैल्यू दे रहा है। ओके, एंड देन एन इंटीजर। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहां पे हमें पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इंटीजर ई, तो हमारे पास इवेंट क्या है, इसमें से भैया सैंपल स्पेस में सारे इंटीजर्स को ढूंढिए, 1 2 3 4 5 6, ऑल आर द इंटीजर्स। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in this event, that is 6, and hence the probability here will be equal to n of e by n of s 6/6, and which is 1. Of course I am very sure कि आप डाइस फेंकोगे you will get a integer, आप डाइस फेंकोगे you will get a whole number, आप एक डाइस फेंकोगे you will get a real number, you will get a natural number, तो इन सारे के आने की probability कितनी हो जाएगी 1, because that is a sure event, right। यदि आपने एक डाइस फेंका तो आपको पता है, you know very very well कि जो भी एक नंबर आएगा वो इंटीजर होगा, be it 1 be it 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स। सो ये आपका श्योर इवेंट है, यही चीज बताना था इन 2 क्वेश्चंस के माध्यम से। एच एन के, एच क्या बोलेगा कि दिस विल ऑलवेज बी अ श्योर इवेंट, हमेशा, सॉरी एच क्या बोल रहा है, दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, और इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0, वाइल के क्या बोल रहा है, दिस इज अ श्योर इवेंट एंड हेंस इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये सर्टेन इवेंट है, दिस इज अ श्योर इवेंट। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास डबल डाइस प्रॉब्लम खत्म हुआ, सिंगल डाइस प्रॉब्लम खत्म हुआ कि यदि हमारे पास एक डाइस है तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें डील करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम डील करेंगे डबल डाइसेस के साथ। जब हमने 2 डाइस को एक साथ फेंका या एक के बाद एक डाइस को फेंका, दोनों के लिए सैंपल स्पेस जो होता है वो बेटा सेम होता है, ठीक। चलिए, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, आपने 2 डाइसेस फेंके, ठीक है, आपने 2 डाइस फेंका, यदि पहले डाइस पे 1 आया, कंसीडर यू गॉट 1 ऑन द फर्स्ट डाइस, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहला डाइस मैंने फेंका तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और सर 6 भी आ सकता है, राइट। पहले मैंने एक डाइस फेंका, उस पर 1 आ गया, अब मैंने क्या किया, वापस से उस डाइस को दोबारा थ्रो किया, दोबारा फेंका, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यदि पहली बार में 1 आया तो दूसरी बार में सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ऑफ कोर्स ये सारे पॉसिबल होंगे। एट द सेम टाइम यदि पहली बार में 2 आया तो दूसरी बार में सर 2,1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो केसेस क्या हो जाएंगे बेटा, 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 एंड 2,6। उसी तरीके से यदि पहली बार में 3 आया तो
दूसरी बार में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो केसेस क्या बनेंगे 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 राइट। सो दीज आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। यदि हम दो डाइसेस को एक साथ फेंक रहे हैं तो ये सारे हमारे आउटकम्स हो सकते हैं 1,1 1,2 1,3 ठीक है। इफ यू काउंटेड वी हैव 36 एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है और इस सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा 36 ठीक है। ध्यान से देख लीजिए these all are the possible elements in the sample space okay। चलिए सो ये हो गया हमारे पास जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे सैंपल स्पेस में 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 एंड सो ऑन। तो दीज आर, यहां से हमें ये पता चल गया दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 36। कितने एलिमेंट्स है बेटा इस सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स है हमारे पास ओके। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ठीक है। डबल डाइस पे कि यदि दो डाइसेस को फेंका गया एक के बाद एक और दोनों डाइसेस को एक साथ तो क्या सैंपल स्पेस हम लोग देख चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस हम लोग देख चुके हैं दैट इज 36। नाउ सबसे पहले बोला है डबलेट ठीक है। यदि मैं चेक करूं, यदि मैं सारे सैंपल स्पेस जो हमारे पास सैंपल स्पेस मिला था इफ यू चेक इट आउट तो क्या क्या पॉसिबिलिटी था 1,1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। और क्या पॉसिबिलिटी यदि पहले डाइस पे 2 आ गया तो 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6। यदि पहले पे 3 आ गया तो 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 एंड 3,6। यदि पहले डाइस पे ही 4 आ गया तो 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 एंड 4,6। सिमिलरली और क्या हो सकता है बेटा 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 एंड 5,6। और यदि पहले डाइस पे 6 आ गया तो 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 एंड 6,6। नाउ व्हाट वी हैव राइट नाउ ये हो गया। सबसे पहले बोला है डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है डबलेट मीन्स दोनों सेम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ऐसे कितने केसेस है हमारे पास बेटा वी हैव 6 केसेस जहां पे दोनों के दोनों सेम है। वी आर गेटिंग डबलेट इन 6 केसेस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो कि होता है n ऑफ e अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ e इवेंट को सेटिस्फाई करने वाले या फेवर करने वाले कितने कंडीशंस है 6 while the number of elements in the sample space is 36 hence our answer will be equal to 1/6। अगला क्वेश्चन इवन ऑन द फर्स्ट डाइस। पहले डाइस में मुझे इवन चाहिए व्हाट आई वांट आई विश टू गेट इवन ऑन द फर्स्ट डाइस। पहले डाइस पे मुझे इवन नंबर चाहिए ओके। पहले डाइस पे इवन नंबर कहने का मतलब क्या है दूसरे डाइस पे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। पहले डाइस पे आपको इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस 2 2 2 सारे पे आ रहा है इवन नंबर। इसमें क्या आ रहा है बेटा सारे के सारे ऑड है फर्स्ट डाइस पे। इसमें क्या है सारे के सारे ऑड फर्स्ट डाइस पे। इसमें भी सारे के सारे इवन इसमें भी सारे के सारे इवन। काउंट करें 6 6 6 व्हाट विल बी द आंसर हियर। सो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 18/36 एंड दिस गिव्स मी 1/2। यहां से मेरे पास कितना आ गया 1/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ऑन द फर्स्ट डाइस। पहले डाइस पे 2 चाहिए सेकेंड डाइस पे आ रहा है मुझे कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट डाइस पे 2 चाहिए 2 ऑन द फर्स्ट डाइस। सो दीज आर द 6 केसेस। ये वो 6 केसेस हैं जहां पे मुझे सारे के सारे फर्स्ट डाइस पे 2 मिल रहा है। दीज आर द केसेस इन विच आई एम गेटिंग 2 ऑन द फर्स्ट डाइस राइट। कितने केस है बेटा 6। कितने केस है यहाँ पे हमारे पास 6 while the total number of cases are 36। तो इसका भी आंसर कितना आ गया 1/6। Likewise 3 on any of the dice। किसी भी on any one of the dice किसी एक डाइस पे 3 चाहिए। फर्स्ट पे चाहिए सेकंड पे चाहिए वो नहीं मतलब दैट डजंट मैटर राइट। यू कैन गेट 3 ऑन द फर्स्ट और यू कैन गेट 3 ऑन द सेकंड बट एक 3 कब कब आ रहा है 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6। ऑफ कोर्स वी विल नॉट इंक्लूड 3,3 क्योंकि बोला एनी वन डाइस किसी एक डाइस पे ही चाहिए। तो हमारे पास कितना आ गया 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6। इनफैक्ट 1,3 एक 3 मिल गया। ये भी तो सारे केसेस होंगे भैया। These are also the possible cases, right? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in 10 cases we are getting 1 3 on किसी भी डाइस पे एक 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा what will be the probability here that will be equal to 10/36। हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 5/18। ठीक है। सो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। आगे ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है अभी हमें और क्वेश्चंस करने हैं बेस्ड ऑन दिस। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ द डाइसेस एज 7।
दोनों नंबर्स पे जो सम होना चाहिए, दोनों डाइसेस पे जो नंबर शो हो रहा है अपर फेस पे, उनका सम होना चाहिए 7। उनका सम कितना होना चाहिए? 7। ध्यान से सुनना इस बात को। इस चीज को मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि यहां से हमें सम निकालना बहुत ईजी है। कैसे, आइए देखते हैं। 1,1 यदि आप बात कर रहे हो 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 6,1 ये सारे नंबर्स का जो सम है बेटा वो 7 है। ठीक है, उसके नीचे चलते हैं। 2,6 3,5 4,4 5,3 6,2 इन सारे नंबर्स के जो सम है दैट इज इक्वल टू 8। 3,6 4,5 5,4 6,3 इनका सम कितना है? 9। 4,6 5,5 6,4 इनका सम जो है वो 10 है। इन दोनों नंबर्स का सम 11 है और ये अकेला ऐसा है जिसका सम 12 है। एट द सेम टाइम 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 इनका सम कितना है? 6। 1 4 2 3 3 2 4 1 इनका सम है 5। 1 3 2 2 3 1 इनका सम है 4। इन दोनों नंबर का सम है 3 और ये अकेला ऐसा नंबर है जिसका सम है 2। हमें सम पता चल गया। अब देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हो गए। पहला क्या बोल रहा है? सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ द डाइसेस है 7। जितने भी डाइसेस हैं, जितने भी नंबर्स शो कर रहे हैं दोनों डाइसेस पे, उनका सम होना चाहिए 7। ऐसे कितने केसेस है जिनका सम 7 है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 6/36। दैट इज अगेन 1/6, राइट। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइसेस आर इवन। दोनों डाइसेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम करोगे तो इवन आना चाहिए। इवन कुछ भी आ सकता है, चाहे वो सम 2 हो, चाहे वो 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, एनीथिंग, बट उनका सम होना चाहिए इवन नंबर। मतलब हमें 2 वाला काउंट करना होगा इवन, 4 भी सम हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, या तो फिर 12 भी हो सकता है। काउंट कर लीजिए कितने केसेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So how many cases we have? We have 18 cases जहां पे उनका सम कितना आ रहा है बेटा? इवन सम आ रहा है। and 18/36 can be written as 1/2. अगला क्वेश्चन, सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस एट लीस्ट 8। सम जो होना चाहिए कम से कम 8 होना चाहिए, कम से कम 8 होना चाहिए, एटलीस्ट 8। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? 8 भी हो सकता है, 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, 8 9 10 11 12, राइट। तो सम या तो 8 होगा, या तो 9 होगा, या तो 10, या तो 11, या तो 12। मतलब हमें ये सारे नंबर्स काउंट करने हैं, राइट। तो यहां से कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। तो यहां से हमारे पास आंसर कितना आ गया? 15/36। 3 से कैंसिल करके लिख सकते हो 5/12। एंड सम ऑफ नंबर ऑन द बोर्ड दैट डाइसेस एट मोस्ट 6। ज्यादा से ज्यादा जो सम है 6 हो सकता है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब सम 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6। तो हमें 6 से ऊपर वाले सारे नंबर्स को काउंट करना है, राइट। तो यहां से कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और इसका भी आंसर हमारे पास कितना आ गया बेटा? 15/36। यू नीड जस्ट टू चेक कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि आपके कंडीशन को फेवर कर रहे हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके इवेंट को फॉलो कर रहे हैं या फेवर कर रहे हैं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, दोनों को डिवाइड करो, आगे प्रोबेबिलिटी। दैट्स इट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर अप टू दिस। यहां तक आपको सारा चीज क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, कार्ड प्रॉब्लम क्या है? या गेम ऑफ कार्ड्स। हम लोग खेलते भी हैं गेम ऑफ कार्ड्स, हमने देखा भी होगा कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए, अगेन मैंने आपको क्या बोला है, यू हैव टू गिव योर मेन फोकस ऑन द सैंपल स्पेस। आपको सैंपल स्पेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो जब कभी भी हम किसी भी कोई भी गेम ऑफ कार्ड्स खेलते हैं, हमें पता है कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं बेटा? 52। सो वी हैव 52 नंबर ऑफ कार्ड्स। इन 52 कार्ड्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन ऑन द बेसिस ऑफ कलर के बेसिस पे। ठीक है, सो ये आपके 26 ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड्स जो होते हैं बेटा वो होते हैं आपके रेड कार्ड्स। ठीक है, 26 वी हैव ब्लैक एंड 26 हमारे पास रेड कार्ड होते हैं। अब इन जो 26 के ब्लैक कार्ड हैं, इसमें हमारे पास 13 कार्ड्स स्पेड के होते हैं और 13 कार्ड क्लब्स के होते हैं। एट द सेम टाइम जो हमारे पास यहाँ पे 52 कार्ड्स में यहाँ पे 13 हमारे हार्ट के होते हैं और 13 हमारे डायमंड्स के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे हम लोग यहाँ पे इसको दिखाते हैं। आई कैन शो यू द फिगर ऑल्सो, ध्यान से देखिएगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सी
हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं बेटा 52 कार्ड्स होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दैट वी आई थिंक यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो होता है 52। इनमें से इन 52 कार्ड्स में से हम लोग क्या कहते हैं, वी डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ 26 ईच बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कलर। रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास 26 एंड ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास 26। सो वी हैव 26 ब्लैक एंड 26 रेड कार्ड्स। ओके, आफ्टर दैट अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, इन रेड कार्ड्स को अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको बोला जाता है हार्ट, दिस इज सेड टू बी हार्ट। ये वाला पार्ट जो कहलाता है बेटा दिस इज हार्ट्स, और इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड, दिस इज डायमंड। तो इन दैट 26 रेड कार्ड्स देयर आर 13 डायमंड कार्ड्स एंड 13 हार्ट्स, ठीक है। एट द सेम टाइम जो ब्लैक के कार्ड्स होते हैं उनको भी हम लोग 13 में डिवाइड करते हैं बिटवीन स्पेड्स एंड क्लब, ठीक है, बिटवीन स्पेड्स एंड क्लब। तो 13 हमारे स्पेड्स के कार्ड्स होते हैं और 13 हमारे क्लब के कार्ड होते हैं, ठीक है। सो ऑन द कॉन्ट्रेरी यदि हम पूरे को कंक्लूड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वी हैव 52 कार्ड्स, जिसमें से 26 रेड एंड 26 ब्लैक। 26 रेड कार्ड्स को हम लोग फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 13 हार्ट्स एंड 13 डायमंड्स। 26 ब्लैक कार्ड्स को हम लोग फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 13 स्पेड एंड 13 हमारे पास होता है क्लब, ठीक है। देन आफ्टर दैट अब ध्यान से सुनिए, इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं। हर एक 13 के सेट में एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है। एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है और एक होता है एस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एस। दीज आर कॉल्ड एज जैक, जे फॉर जैक, ठीक है, या फिर किसी को नैक्स भी बोला जाता है, नेव्स भी बोला जाता है। दिस आर ऑल्सो सेड टू बी नेव्स, ओके। यहाँ पे Q फॉर क्वीन होती है और किंग K फॉर किंग होता है, ठीक है। सो ऑन द कॉन्ट्रेरी यदि हम पूरी चीज को वापस से कंक्लूड करें, कितने किंग है हमारे पास 4, कितने क्वीन है हमारे पास 4, कितने नेव्स है, कितने जैक है हमारे पास 4, ठीक है, कितने 10 नंबर और इन कितने एसेस है हमारे पास 4। एंड दीज ऑल, ये जो सारे के सारे नंबर कार्ड्स होते हैं, तो नंबर कार्ड्स एक सूट के, इनको क्या बोला जाता है बेसिकली सूट। तो कितने सूट्स हो गए 4, कितने कलर्स होंगे 2, ब्लैक कलर के 26 एंड रेड कलर के 26। कितने सूट्स होते हैं 4, कौन कौन से, स्पेड, क्लब, देन हार्ट्स एंड डायमंड। इनके कितने कार्ड्स होते हैं 13। किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितने 4, जैक कितने 4, एसेस कितने 4 और बाकी के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 27 36। ये जो 36 कार्ड्स होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके नंबर कार्ड्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर कार्ड्स बोलते हैं। तो इन सब को मिला के बनता है हमारा 52 कार्ड्स। जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें ये सब होता है। तो अब याद रखना, जब कभी भी आपको बोला जाए ये सारे देख रहे हो, ये आपके क्या कहलाते हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड एज फेस कार्ड्स, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सब पे फेसेस बने हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। तो टोटल हाउ मेनी फेस कार्ड्स वी हैव, 3 6 9 12। हमारे पास कितने फेस कार्ड्स होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। कितने नंबर कार्ड्स होते हैं, वी हैव 36 नंबर कार्ड्स। कितने एसेस होते हैं 4, हार्ट के कितने कार्ड्स होते हैं 13, स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं 13, स्पेड के कितने फेस कार्ड्स होते हैं 3। क्लियर है सभी को। स्पेड के कितने एस होंगे 1, हार्ट के कितने कार्ड्स, डायमंड के कितने कार्ड्स होंगे 13, डायमंड के फेस कार्ड्स कितने होंगे 3, डायमंड के नंबर कार्ड्स कितने होंगे 9, डायमंड का स्पेड डायमंड का एस कितना होगा 1। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या कितने नंबर हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग सैंपल स्पेस तो नहीं लिखेंगे, वी शुड नो, हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि क्या कैसे है, कितने कार्ड्स किस चीज के हैं, ठीक है। आइए लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चन ऑन द सेम। फाइन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा, सबसे पहले हमें पूछा गया है, हमें ये तो क्लियरली पता है और वो चीज़ हमें हर एक क्वेश्चन में लिखनी भी है। तो एक बार हम लोग साफ साफ लिख लेते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 52। यहाँ पे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, वी हैव 52 एलिमेंट्स, 52 केसेस हो सकते हैं। आइए, किंग, किंग कितने कार्ड्स होते हैं बेटा, किंग के 4, स्पेड का, क्लब का, हार्ट का, डायमंड का। तो कितने कार्ड्स हो गए हमारे पास 4। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास 4/52 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/13। सिमिलरली फेस कार्ड्स, मैंने अभी आपको बताया था हर एक सूट के 3 फेस कार्ड होते हैं, 3 6 9 12। सो हाउ मेनी फेस कार्ड्स वी हैव 12 फेस कार्ड्स। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 12/52 और आप यदि कैंसिल कर सकते हो इसको, वी कैन कैंसिल इट बाय 4 से कैंसिल करोगे तो कितने टाइम्स में बेटा 3 टाइम्स में, और यहाँ पे 4 से कैंसिल करोगे तो कितने टाइम्स में आ जाएगा 13 टाइम्स में। तो ये भी कितना हो गया आपका 3/13। नेक्स्ट ब्लैक कार्ड, आपको पता है
52 कार्ड्स में से हम लोग दो कलर्स में डिवाइड करते हैं। 26 हमारे ब्लैक होते हैं, 26 हमारे रेड होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कार्ड कितना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, दैट विल बी 26/52 एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2। अगला बोला है हार्ट, कितने हार्ट होते हैं, हार्ट इज अ सूट, हार्ट इज अ सूट, तो हार्ट के कितने कार्ड्स होते हैं 13, तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा 13/52 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एस ऑफ स्पेड, स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, टोटल एस 4 होते हैं, स्पेड का एक, क्लब का एक, डायमंड का एक, हार्ट का एक। हमें यहाँ पे साफ साफ बोला है कि आपको स्पेड का एस चाहिए, यू नीड अ एस ऑफ अ स्पेड, स्पेड का एस चाहिए, तो ये तो भाई साहब एक ही है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P ऑफ E विल बी इक्वल टू 1/52। दिस इज द वे वी सॉल्व इट, ठीक है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, हमेशा सैंपल स्पेस आपको पता होना चाहिए कितना सैंपल स्पेस है, एंड हेंस वी कैन डू इट। ओके, आइए नेक्स्ट, ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए कम, अगला पूछा है ऑनर्ड कार्ड, ध्यान से सुनिए, फेस कार्ड्स, एस, इन सबको मिला के बोला जाता है ऑनर्ड कार्ड्स, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल 16, क्यों, किंग के 4, क्वीन के 4, जैक के 4 एंड देन एसेस के 4, तो कितने हो गए बेटा टोटल 16। तो यहाँ पे आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ E विल बी इक्वल टू 16/52, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 16/52 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर कार्ड, मैंने आपको बोला था हर एक सूट के 9 नंबर कार्ड्स, 4 सूट 9 × 4 कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, तो हमारे पास कितने कार्ड्स हो जाएंगे, दिस विल बी 36/52, इफ यू कैंसिल इट बाय 4 दिस विल बी 9/13, ठीक है। ब्लैक एंड अ किंग, ध्यान से सुनना, ब्लैक एंड किंग, जब क्वेश्चन एग्जाम में देते हो आप लोग, यदि आता है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, इसका मतलब आपको दोनों क्वेश्चन करना पड़ता है। जबकि यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, बीच में और लिखा रहता है तो आप एक ही क्वेश्चन करते हो, एंड के केस में दोनों, और के केस में एक। इसका क्या मतलब है, जब कभी भी आपके पास एंड पूछा जाएगा यू हैव टू टेक बोथ द कंडीशन, आपको दोनों कंडीशन को लेना है। जब कभी भी और पूछा जाएगा कोई एक कंडीशन होने से भी चलेगा, ठीक है, कोई एक कंडीशन होने से भी चलेगा। सो राइट नाउ यदि हम यहाँ पे सेम चीज देखें, यदि मुझे बोला जा रहा है नंबर ब्लैक एंड द किंग, तो ब्लैक के कितने कार्ड्स होते हैं 26, लेकिन ब्लैक के किंग कितने होते हैं 2, ब्लैक के किंग कितने होते हैं 2, कौन कौन से, एक तो होगा आपका स्पेड का किंग और एक होगा आपका क्लब का किंग। तो किंग भी ऐसे कितने किंग्स हैं जो कि ब्लैक भी हैं, 2, टोटल 4 किंग्स होते हैं, 2 रेड के 2 ब्लैक के, तो ऐसे कितने किंग्स हैं जो कि ब्लैक भी हैं 2। तो हियर आवर आंसर विल बी, यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चे 2/52 विच विल बी 1/26, ठीक है। अगला नेक्स्ट बोला ब्लैक और किंग, या तो ब्लैक होना चाहिए या तो किंग होना चाहिए, या तो ब्लैक या तो किंग, या तो ब्लैक या तो किंग। ब्लैक के कितने कार्ड्स होते हैं, ब्लैक के कार्ड्स होते हैं 26, किंग के कार्ड कितने होते हैं 4, बट योर आंसर इज नॉट 26 + 4 दैट इज 30। क्यों नहीं होगा यहाँ पे 26 + 40, ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पे 26 + 40 क्यों नहीं होगा, हमें दोनों कंडीशंस को देखना है, वो ब्लैक भी होना चाहिए किंग भी होना चाहिए, ब्लैक भी होना चाहिए और किंग, आइदर अ ब्लैक और अ किंग। तो ये हो गया हमारा ब्लैक का, दीज आर द ब्लैक, ठीक है, और ये हो गया हमारा किंग। अब काउंट कर लो कितने, इसका मतलब आप जब 30 बोलते हो यू आर टेकिंग दिस किंग ट्वाइस, आपने इन दोनों किंग्स को 2 बार काउंट किया है, अदरवाइज काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी कितना हो गया 26। अब हम वापस से इन दोनों का काउंट नहीं करेंगे 27 एंड 28, दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, ब्लैक और किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 28। क्यों 28, क्योंकि 26 होते हैं हमारे ब्लैक, जिसमें से 2 किंग आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, बचे 2 रेड के किंग, तो कितने हो गए 26 + 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा 28/52 दैट गिव्स 7/13। ये चीज याद रखना। और का मतलब क्या होता है बेटा, और में हम लोग प्लस करते हैं, लेकिन आपको ये भी चीज का ध्यान रखना होगा कि किसी चीज को आपने रिपीट तो नहीं किया, ठीक है। और एंड का मतलब क्या होता है बेटा, इन दैट केस एंड मतलब जो कि दोनों के दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। एंड फेस कार्ड, तो फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं 12, तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 12/52। सो दिस इज द वे हाउ वी डू इट, ओके। चल आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, अगले केस की तरफ, एंड दैट इज अ कैलेंडर प्रॉब्लम, ठीक है। कैलेंडर प्रॉब्लम, ये कैलेंडर क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, या कैलेंडर का क्या यूज है वो हम लोग देखेंगे आफ्टर द क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तब हम जाके डिस्कस करेंगे कि कैलेंडर क्यों रखा गया है यहाँ पे, ओके।
The question is asking find the probability of getting 53 Sundays in a non-leap year. एक लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज होते हैं 366. लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं बेटा? 360. लीप ईयर में 366. इन अ नॉन लीप ईयर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं. वी ऑल नो इट वेरी वेल. जबकि ये भी कहा जाता है कि एक साल में नंबर ऑफ वीक्स जो होते हैं वो 52 वीक्स होते हैं. एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं. और हर एक वीक में कितने डेज होते हैं? एवरी वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज. तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा नंबर ऑफ डेज? 52 इंटू 7. तो यहां से हमारे पास कितना आ रहा है? 364. ओके, इसका मतलब क्या है कि एक साल में 365 डेज होते हैं. वीक्स कितने होते हैं? 364. तो क्या 52 वीक्स मिलके एक साल बनाता है? नो. यदि आप बोल रहे हो कि आपके पास 365 डेज हैं, इन 365 डेज को मैं ब्रेक कर रहा हूं 364 डेज प्लस 1 डे, इसमें मैंने ब्रेक किया, ठीक है. और इन 364 का मतलब क्या होता है? 52 वीक्स. तो एक साल 52 वीक्स का नहीं होता, एक साल होता है 52 वीक्स प्लस 1 डे. एक साल क्या होता है बेटा? 52 वीक्स प्लस 1 डे का होता है. ओके, यदि मैं आपसे पूछूं एक वीक, तो एक वीक में 7 दिन होते हैं. इंडिपेंडेंट ऑन व्हाट फ्रॉम व्हाट इट स्टार्ट्स, एक वीक में 7 डेज होते हैं और हर एक दिन एक एक बार आता है. फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूं मंडे से. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. मतलब मंडे एक बार आया, ट्यूसडे एक बार आया, वेडनेसडे एक बार आया, थर्सडे एक बार आया, फ्राइडे एक बार आया, सैटरडे एक बार, संडे एक बार. एट द सेम टाइम यदि मैं बोलूं कि ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं, एक वीक ट्यूसडे से स्टार्ट करोगे, इन दैट केस क्या होगा बेटा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तब जाके आपका एक वीक कंप्लीट होगा. इन शॉर्ट, कोई वीक आपका कभी भी स्टार्ट हो रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द डे, कि वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे से. एक वीक में हर एक दिन एक बार आता है, चाहे वो मंडे से स्टार्ट हो, ट्यूसडे से स्टार्ट हो, वेडनेसडे स्टार्ट हो. सिमिलरली 2 वीक में हर एक दिन कितने बार आएगा? 2 बार. 3 वीक में हर एक दिन कितने बार आएगा? 3 बार. 4 वीक में हर एक दिन कितने बार आएगा? 4 बार. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन 52 वीक्स में मुझे मिले 52 संडे, 52 मंडे, 52 वेडनेसडे, ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ये सारे के सारे दिन 52 टाइम्स आ चुके हैं. ऐसा किसी एक ही दिन को मौका मिलेगा जो कि 53 टाइम्स आ सके. लेट्स सी द कैलेंडर. कैलेंडर देखते हैं हम लोग. यहां पे मैं आपको यही चीज समझा रहा था. द सेम थिंग आई वाज एक्सप्लेनिंग इट टू यू दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कैलेंडर, यदि हम लोग किसी भी कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो वो कभी भी स्टार्ट हो. फॉर एग्जाम्पल वो संडे से स्टार्ट हुआ, तो संडे से यदि वो स्टार्ट होता है, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम संडे, ठीक है, तो ये पहला वीक कहां पे खत्म हुआ बेटा? मतलब ये एक वीक हो गया, सैटरडे पे खत्म. दूसरे वीक तक मतलब अप टू 14 हमें क्या मिल रहा है कि हर एक दिन कितने बार आ रहा है? 2 बार. 3 वीक में हर एक दिन कितने बार आ रहा है? 3 बार. तो 52 वीक्स में हर एक दिन कितने बार आएगा? 52 टाइम्स, राइट. तो जो आपने बोला था कि सर 365 डेज विच कंसिस्ट ऑफ 52 वीक्स प्लस 1 डे, उसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सारे के सारे 52 टाइम्स आ चुके हैं. ऐसा एक ही दिन होगा जो कि 53rd टाइम आएगा. वो कोई भी होगा लेकिन एक ही होगा. कोई भी दिन होगा बट वो दिन कौन सा होगा? एक ही होगा. ठीक है, बीट संडे, बीट मंडे, बी और ट्यूसडे. तो यहां से हमें क्या पता चला कि भाई साहब जो आप 65 डेज के बारे में बोल रहे थे, विच इज 52 वीक्स प्लस 1 डे, इस दिन के बारे में हमें डिस्कस करना है. ठीक है, अब वो दिन हो क्या सकता है? तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है बेटा? इट मे बी अ संडे, इट मे बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ठीक है, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितना हो गया? 7. जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 53rd जो डे होना चाहिए वो संडे होना चाहिए. 53rd डे कितना होना चाहिए बेटा? संडे होना चाहिए. तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना मिल गया? 1. एंड हेंस द प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1/7. सैंपल स्पेस में सी 52 के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है क्योंकि हर एक दिन 52 बार आ गया. ऐसा किसी एक ही दिन को मौका मिलेगा इन अ नॉन लीप ईयर, जो कि कितने बार आए बेटा? जो कि 53 टाइम्स आए. तो वो कुछ भी हो सकता है सर. संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है. लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें संडे चाहिए. तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 1. टोटल आउटकम कितने होंगे? 7. हेंस द आंसर इज 7. इनफैक्ट ये आप याद भी कर लेना कि नॉन लीप ईयर में 53 डेज, कोई भी एक दिन 53 टाइम्स आए, इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू 1/7. ओके, चल इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन भी है हमारे पास. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर? अब सेम क्वेश्चन रहेगा.
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी लीप ईयर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी लीप ईयर, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं बेटा? 366 डेज, जिसको मैं वापस से ब्रेक करूंगा 364 डेज प्लस 2 डेज, राइट। ये 364 डेज बना के हमारे पास 52 वीक बनाते हैं, राइट, एंड 2 डे एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या हुआ? लीप ईयर में 52 वीक्स नहीं होते हैं, 52 वीक्स के साथ साथ 2 एक्स्ट्रा दिन भी होते हैं। अलॉन्ग विद दोस 52 डेज वी हैव 2 एक्स्ट्रा डेज ऑल्सो, ओके। तो अब हमारे पास देखो, यदि मैं बोलूं कल के बाद के 2 दिन बोलना, तो आप बोलोगे सर ट्यूसडे या वेडनेसडे, ट्यूसडे देन वेडनेसडे। यदि वो कल का दिन आपका फ्राइडे है, उसके बाद का दिन क्या होगा? सैटरडे। कल का दिन संडे, उसके बाद का दिन क्या होगा? मंडे। कल का दिन फ्राइडे है, उसके बाद का दिन क्या होगा? सैटरडे। इन शॉर्ट, यदि आपके पास 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे, सो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी कॉन्सेक्यूटिव। वो हमेशा कैसा होगा बेटा? कॉन्सेक्यूटिव। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी, बट वो जो दोनों के दोनों दिन है वो एक्स्ट्रा होंगे। तो यहाँ पे जो कंप्लीट हम लोग बात कर रहे हैं वो उन 2 एक्स्ट्रा दिन के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सी 52 वीक्स बोला है, तो इसका मतलब क्या कि सर इन 52 वीक्स में हमारे पास 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे ऑलरेडी है। अब यहाँ पे एक नहीं, ऐसे 2 दिन को मिलेगी प्रायोरिटी जो कि 53 टाइम्स आएंगे, और वो दोनों के दोनों दिन कंसेक्यूटिव होंगे। यदि पहला दिन मंडे हुआ तो दूसरा दिन ऑफ कोर्स ट्यूसडे होगा, राइट। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर दीज 2 डेज? ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वो मंडे ट्यूसडे होगा, राइट, या तो वो मंडे ट्यूसडे होगा, या तो वो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या तो वो वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या तो वो थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या तो वो फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या तो वो 2 दिन सैटरडे संडे हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, और इस सैंपल स्पेस में भी 1 2 3 4 5 6 एक छूट गया, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, और एक और भी तो हो सकता है संडे एंड मंडे, यस और नो। तो यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो गए? 7। तो ऑफ कोर्स n ऑफ s विल बी इक्वल टू 7। अब बताइए, आपको चाहिए 53 संडेज, आपको क्या चाहिए? यू वांट 53 संडेज। यदि वो 2 दिन सैटरडे संडे हो जाए, तो 52 सैटरडे था ही पहले, 52 संडे भी था, अब मुझे मिलेंगे 53 सैटरडे, 53 संडे। सैटरडे को मालूम गोली, उससे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब है संडे से कि संडे 53 होने चाहिए, आ रहा है 53 संडे। सिमिलरली संडे मंडे हो जाए तो 53 संडे भी मिलेगा, 53 मंडे मिलेगा। मतलब दीज आर द 2 फेवरेबल इवेंट्स कि संडे भैया 53 हो रहा है और उसके साथ क्या 53 हो रहा है, उससे तो मुझे मतलब नहीं है, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट 53 संडे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 53 संडे। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट 53 संडे। तो इसमें भी हमारे पास 53 संडे हो रहा है, इसमें भी हमारे पास 53 संडे हो रहा है। अब वो बात अलग है कि इसमें फायदा सैटरडे को भी हो रहा है, इसमें फायदा मंडे को भी हो रहा है, वो भी 53 टाइम्स आना है, बट दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न, क्योंकि क्वेश्चन इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट 53 संडेज। सो दीज आर द टू पॉसिबल केसेस। यहाँ पे हमारे पास ये 2 पॉसिबल केसेस हैं जहां पे वी आर गेटिंग 53 संडेज। तो प्रोबेबिलिटी हियर विल बी इक्वल टू 2/7। इस चीज को याद भी रख लेना कि इफ यू हैव अ नॉन लीप ईयर तो उसमें 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/7, एंड इफ यू हैव अ लीप ईयर तो उसमें 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है दैट इज 2/7। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलेंडर हमने डिस्कस किया। ठीक है, इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आइए अब हमें कुछ चीज पता होनी चाहिए बेटा, कुछ चीज नोट जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत पूछे जा सकते हैं। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो उनके बीच में होगी। प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा होगी, 1 से कम होगी। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन हो सकता है, ये डेसिमल हो सकता है, बट इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव 0 to 1। आपको मैंने बताया था 0 कब होता है बेटा? व्हेन इट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट। 0 कब होगा? जब ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा जो कि कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाइस में 7 आने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, डाइस में 0 आने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। बट 1 का मतलब क्या होता है? जब कभी भी आपके पास प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की 1 आ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज श्योर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्योर और सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हमेशा रहती है। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी वर्क, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी कि वो ना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पास, यदि आप पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू 0.7, तो प्रोबेबिलिटी कि आप पास ना हो
प्रोबेबिलिटी कि आप पास ना हो वो कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस 0.7 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.3। तो किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है 1 होता है। आज बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी यदि 5 बूंद भी गिर जाए ना तो भी हम लोग बोलेंगे बारिश होगी। ऑफ कोर्स इफ इट शावर्स फ्रॉम द क्लाउड, नॉट कि भैया जग का पानी डाल दिए बारिश होगी, नो, ठीक है, वो हमारे सारे इन सब कंडीशंस को हटा के बारिश थोड़ी हुई या बहुत हुई, बारिश इज अ बारिश, राइट। तो यहाँ पे बारिश होगी या ना होगी उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितना होगा 1। तो किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग पास विल बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग फेल्ड दैट विल अगेन बी इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में आ रही? तीसरी चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप ये दोनों नोट कर लिया होगा आपने। चल आई एक चीज आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, हमने एक डाइस को फेंका, व्हेन वी थ्रो अ डाइस, जब हम एक डाइस को फेंकते हैं तो जब आपने एक बार फेंका तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितना हुआ 6, ठीक है। कब? ऑन थ्रोइंग अ डाइस वंस। यदि मैं किसी भी डाइस को एक बार फेंक रहा हूं तो यहां पे हमारे पास n ऑफ s कितना आया था बेटा 6 आया था। यदि मैं उसी डाइस को इफ आई थ्रो द सेम डाइस ट्वाइस तो आपने देखा हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट केस वाज 36। व्हाई 36? दैट इज 6 का स्क्वायर। तो अब आप खुद बताइए कि यदि आपने उसी डाइस को 3 बार फेंका, यदि आपने उसी डाइस को 3 बार फेंका तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बच्चे 6 का क्यूब हो जाएगा। यदि आप उसी डाइस को 4 टाइम्स फेंकते हैं, यदि आप उसी डाइस को 4 टाइम्स फेंकते हो इन दैट केस n ऑफ s कितना हो जाएगा बेटा 6 टू द पावर 4। तो यदि आप उसी डाइस को 10 टाइम फेंकोगे तो कितना हो जाएगा 6 टू द पावर 10। 15 टाइम्स फेंकोगे तो कितना हो जाएगा 6 टू द पावर 15। मतलब पावर में नंबर ऑफ टाइम्स रहता है। याद करो, आपने कॉइन फेंका था, कॉइन टॉस किया था, यदि आपने उस कॉइन को वंस टॉस किया था तो 2 ही केस आया था, या तो हेड या तो टेल। बट जब आपने उसको ट्वाइस फेंका तो वी हैड 4 केसेस। जब आप उसको 3 बार फेंकोगे वी हैड 2 टू द पावर 3 दैट इज 8 केसेस। 4 बार फेंकोगे तो कितना हो जाएगा 16 केसेस। 5 बार फेंकोगे कितने हो जाएंगे 32 केसेस। ऑन होल यदि इस चीज को कंक्लूड किया जाए, ठीक है, सो यदि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस ऑन डूइंग एन इवेंट, किसी भी इवेंट को करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस यदि आपके पास n है, ठीक है, तो यदि आप उसी चीज को ऑन डूइंग द इवेंट ट्वाइस 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा n का स्क्वायर। ऑन डूइंग द इवेंट थ्राइस 3 बार करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा n क्यूब। ऑन डूइंग द इवेंट n टाइम्स, यदि आप उसको n टाइम्स कर रहे हो या m टाइम्स कर रहे हो तो वो कितना हो जाएगा बेटा n टू द पावर m। तो यदि आपने कोई भी एक इवेंट किया, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस लेट्स से 11 है, 2 बार करोगे तो 11 का स्क्वायर, 3 बार करोगे तो 11 का क्यूब, 10 बार करोगे 11 टू द पावर 10, m टाइम्स करोगे 11 टू द पावर m हो जाएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। एक और चीज याद रखना, एक कॉइन को 2 बार फेंको या 2 कॉइन को एक साथ फेंको, यू आर थ्रोइंग अ कॉइन ट्वाइस और यू आर throwing 2 coins together, दोनों के लिए सैंपल स्पेस सेम होगा। इन बोथ द कंडीशंस द सैंपल स्पेस विल बी सेम, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस फॉर एन इवेंट डूइंग m टाइम्स, m बार यदि आप उसे कर रहे हो, सो दैट विल बी इक्वल टू सैंपल स्पेस फॉर डूइंग those m events together। दोनों के लिए जो सैंपल स्पेस होगा सेम होगा। 2 कॉइन को 4 बार फेंको, 1 कॉइन को 4 बार फेंको या 4 कॉइन को एक साथ फेंको, सैंपल स्पेस का ट्री वैसे ही बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस वैसे ही रहेंगे। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए। पहली चीज, 4 इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला चीज कि किसी की भी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 पे खत्म होती है। 0 तब होगी व्हेन इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, 1 तब होगा व्हेन यू आर वेरी श्योर व्हेन इट इज अ सर्टेन इवेंट। पहला चीज। सेकंड चीज यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि यदि आप किसी भी इवेंट को एक बार कहते हो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस यदि n है, 2 बार करोगे तो n स्क्वायर, 3 बार करोगे तो n क्यूब, m टाइम्स करोगे तो n टू द पावर m होगा।
5 चीजों को एक साथ करना या एक चीजों को 5 बार करने में दोनों केसेस में सैंपल स्पेस सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या पूरा सैंपल स्पेस ही सेम होगा इनफैक्ट, ठीक है। सैंपल स्पेस ऑन थ्रोइंग अ डाइस 5 टाइम्स इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस फॉर throwing those 5 dices together, दोनों केसेस में सेम होगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोबेबिलिटी दैट यू नीड फॉर फाउंडेशन कोर्स, जो आपके फाउंडेशन कोर्स को पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती हैं। वी हैड सीन सो मेनी केसेस, जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, लाइक गेम ऑफ कार्ड्स हो सकता है, कॉइन प्रॉब्लम हो सकता है, डाइस प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारा चीज हम, कैलेंडर प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारा चीज हमने देखा। सो थैंक यू ऑल फॉर दिस, ठीक है। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, आई होप यू डू वेरी वेरी वेल, थैंक यू।